My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs all when I stray. Yeah. Well, I'm sacrificing the price you pay. Like living like a figure tale. Sometimes I fall, I slip. Yeah, more friends I be more like you. Yeah, not to put your fire. NARC in short is National Addiction Research Center. It was established in 1990 and it was mainly to cater for the street addicts, who had nobody. Gradually grew from few people to more number of people. And then we had an increase of staff. And then we got trained staff, people trained in how to deal with addiction. Whether it be drugs, whether it be alcohol, garas, ganja, inhalants, and then people started going for treatment. And we had to learn how to deal with addicts, because every addict who came here had a different attitude. Some of them were rough, some of them arrogant, filled with pride and ego, only looking to their selfish motives. Like, when after 4 or 5 days, when an addict feels that he's physically okay, then he starts threatening me. You send me home, I'll cut myself, or I'll hang myself from the fan, or I'll break myself from the glass windows. Now here you got to understand these guys, that the body is craving for drugs, and so they will go to any extent to threaten you. I myself am an alcoholic, and by God's grace, I am completing 25 years since I last had a drink. So with the power of God, we try to convince them. Here we have 3 different methods. We have a counselor who is a psychologist who takes individual counseling on a basis. We have a madam who has been in this field for many, many years. And then we have a doctor who is in charge of the medical aspects and to see to what extent his addiction is. I work here as a counselor. Lastly, sir, is there anything you would like to tell the youngsters about I'm very happy that you are very much involved in taking this message to the youngsters. All you got to tell them, drugs is not going to help you to enjoy your life. It's only going to kill you. Do not try it out of curiosity, or do not be taken by any people who are going to give you wrong information. Live a happy, healthy life without drugs. Drugs is not the answer to any of your problems. मैं एक एल्कोहलिक हूँ और मैंने नशा लास्ट 10 सालों से कर रहा हूँ। जब मैं क्लास 10 पास किया था, उसके बाद मेरी शुरुआत बियर से शुरू हुई थी। यानी स्ट्रॉस बियर का कैन निकला था, तो वो मैं ऐसे स्विमिंग क्लास जाने का टाइम ऐसे ही पीता था, ऐसे ही मतलब शौक के लिए। कोई मेरा तब मैं कुछ एडिक्ट वेडिक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीते मैं हार्ड ड्रिंक्स में पहुंचा, फिर रम, विस्की, ये सब इसमें पहुंचा। तो ये पहुंचने के बाद मतलब ऐसे मैं इसमें एडिक्ट होने लगा। तो मैं सोचा था, बहुत बार डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दिया था कि ये मेडिसिन लो, कि अगर मेडिसिन लोगे तो तुम अगर 1 क्वार्टर पीने का बराबर है। फिर मेरे को मेंटली बहुत अपसेट होने लगा। मेरे घर में भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ टेंशन्स वगैरह है। सो रिगार्डिंग मतलब इस तरह से मेरा ये मतलब बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया था, तो मैं देशी में उतर गया था। यहाँ जो कंट्री जो लिकर है, कंट्री लिकर, सो कंट्री लिकर में जब उतर गया था, तो उसके बाद से मैं क्या किया, मैं चोरी कर रहा हूँ। मतलब मेरा घर से मैं चोरी करने लगा था। मतलब घर में सब कुछ है, पैसा डेली पॉकेट मनी मिलता है, उसके ऊपर भी मेरे को और पैसा चाहिए। मेरी मम्मी जब मतलब मार्केट जाती थी सब्जी लाने के लिए, तो उस टाइम मौका देके मैंने क्या किया, डुप्लीकेट चाबी एक रखता था। तो मैंने घर के सारे चीज बेच डाल के एकदम आराम से नशा करके 1 हफ्ता बाद फिर घर लौटता था, माफी मांग लेता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जितना भी मेरी माँ है मुझे अलाउ करेगी, या मेरा डैडी है मुझे अलाउ करेंगे। तो उस चीज के लिए मैं परवाह नहीं करता था।
तो ये चीज ऐसा है कि हम मतलब क्या बताऊं, मैं ऐसे कभी भी छोड़ नहीं सका। और लास्ट 2-3 साल से मेरा ऐसा हालत हो गया कि मतलब पीता हूं तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं किधर हूं। मेरा घर है चिंबूर में, लेकिन मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, यानी कि सुबह 5:30-6 बजे मैं उठ के देखता हूँ मैं खार रोड के रास्ते पे हूँ। मुझे खुद को भी मालूम नहीं, मैं पिया था सांता क्रूज में, लेकिन मैं हूँ खार रोड में। तो मेरा मम्मी अभी एक जगह काम करते हैं इसमें मतलब चिंबूर में, तो वहाँ पे एक अंकल है, उनके थ्रू से मुझे मैसेज मिला यहाँ का कि ऐसा एक एडिक्शन सेंटर है रिहैब तो मैं पहले भी सुना था, मेरा चेन्नई में है, मेरा कलकत्ता में है, सब जगह में है, लेकिन मैं रिहैब में जाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मुझे डर लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैं बाहर की दुनिया में इतना दिन क्या किया था, खाली शराब ही पीता है और किसी की बात नहीं सुनता था, कोई बड़े आदमी किसी की इज्जत भी नहीं रखा मैं। और एक बात है ये बात की मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल के मैं एक अच्छी लाइफ डील कर सकता हूँ। इसके मेन वजह यही है कि एकदम बॉटम लाइन बोलेंगे तो पीना हम ही नहीं सीखे, जीना भी हम ही को सीखना पड़ेगा। पीने के लिए शराब की जरूरत होती है, जीने के लिए मकसद की जरूरत होती है।